Yes, students, in this session we will discuss chapter 3 of NCERT, that is motion in straight line. In this chapter we will discuss first topic, mechanics. Mechanics is that branch of physics which deals with state of rest or motion of body. This branch is called mechanics. Mechanics can be divided for basically three branches: kinematics, dynamics and statics. Kinematics is that branch of physics in which we deals with motion without its cause, and dynamics is that branch of mechanics in which we deals with motion with cause, and statics is that branch of mechanics in which we deals with the position of body under rest under the inequilibrium of several forces. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की स्टेट को डिस्कस करते हैं, रेस्ट और मोशन. या तो बॉडी रेस्ट और मोशन में है तो क्या उसके फैक्टर्स है, उन स्टेट्स को डिस्कस करने की जो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो कहलाती है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: काइनेमेटिक्स. मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम मोशन तो स्टडी करते हैं लेकिन मोशन का कॉज स्टडी नहीं करते हैं. मोशन विदाउट कॉज काइनेमेटिक्स. और डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम मोशन और मोशन का कॉज दोनों डिस्कस करते हैं. और स्टैटिक्स ब्रांच मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की स्टेशनरी पोजीशन को डिस्कस करते हैं अंडर इन इक्विलिब्रियम विद सेवरल फोर्सेज. जब बॉडी पे कई फोर्स लग रहे हैं और सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है, उस कंडीशन में जब बॉडी अंडर द इक्विलिब्रियम विद सेवरल फोर्सेज, जब बॉडी रेस्ट में रहती है यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है लेकिन उसमें फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सेज वो सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है, उस पोजीशन को डिस्कस करते हैं ब्रांच स्टैटिक्स में. तो बच्चों मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स. Kinematics is also known as motion in kinematics. We will divide two parts. We will divide two parts in its first motion in straight line, motion in straight line or rectilinear motion or rectilinear motion, and second motion in plane. Motion in plane we will discuss in chapter 4, and in chapter 3 we will discuss motion in straight line. तो बच्चों काइनेमेटिक्स को एनसीईआरटी में हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन प्लेन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 एनसीईआरटी का है और मोशन इन प्लेन चैप्टर 4 एनसीईआरटी का है. सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज द मोशन इन विच बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट. सो in kinematics we will discuss here motion in straight line. Motion in straight line is the motion in which body moves in a straight path or along the one axis. This motion is called motion in straight line. Motion in straight line also known as rectilinear motion. So there is three name of motion in straight line. First motion in straight line, second rectilinear motion, and third motion in one dimension. तो बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी. मोशन इन वन डायमेंशन में बॉडी एक एक्सिस के अबाउट मूव करती है, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है. यस, नाउ we can divide three types of motion. First, motion in one dimension, second motion in two dimension, and third motion in three dimension. Motion in one dimension, when the motion in which position of body can be only described by one coordinate is known as motion in one dimension. Is example motion in straight line.
Second, motion in two dimension. Motion in two dimension, we express the position of body by two coordinate of this motion is called motion in two dimension. Example, motion in plane. And third, motion in three dimension. Motion in three dimension, the position of body described by three coordinates x, y and z axis. Example, motion of butterfly, motion of kite, etc. तो बच्चों मोशन को थ्री पार्ट्स में हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। यदि बॉडी मोशन इन वन डायमेंशन बॉडी की पोजीशन एक ही कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन डिटरमाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन टू डायमेंशन में जब बॉडी मूव कर रही है तो मोशन उसकी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन, जब दो कोऑर्डिनेट्स बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे मोशन इन प्लेन जिसमें कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े। और मोशन इन थ्री डायमेंशन, ऐसी मोशन जिसमें हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओरिजिन की रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेस्पेक्ट में, ऐसी मोशन को कहते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। और बच्चों मोशन इन थ्री डायमेंशन में जब बॉडी मोशन इन थ्री डायमेंशन तब कहलाती है जब बॉडी की पोजीशन हम थ्री कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब करनी होती है। जैसे मोशन इन काइट, मोशन इन बटरफ्लाई। तो जब मोशन इन बटरफ्लाई है तो उसकी पोजीशन को एक्स, वाई, लेफ्ट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों से जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसे कहलाते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। नाउ फॉर स्टडी द काइनेमेटिक्स और द मोशन इन स्ट्रेट लाइन देयर इज सम फंडामेंटल टर्म्स which you should know. Yes, first term is distance. Actual length of path covered by moving body is called distance. Second, displacement. Shortest length of path covered by body is called displacement. Shortest length of path between initial and final position of body is called displacement. Yes, next, third, distance. Speed is the distance covered by body in 1 second is called speed. Speed equal to distance upon time. Is speed equal to distance upon time. Is distance, actual length of path covered by body is called distance. Displacement, shortest length of path covered by body. Displacement is a vector quantity. Displacement have both magnitude and direction. And distance is a scalar quantity because it have only magnitude and no direction. Speed is also a scalar quantity. Scalar quantity are those quantity which have only magnitude and no direction. Yes, and its SI unit. SI unit of speed is meter per second. Speed is a scalar quantity. Next, third, velocity. Displacement covered by body in 1 second. Displacement covered by body in 1 second called velocity. Velocity equal to displacement upon time. Displacement upon time. And next, velocity is also a vector quantity, means velocity have both magnitude and direction. And SI unit of velocity is meter per second. Now acceleration is defined as the change in velocity in 1 second, or rate of change of velocity is called acceleration, or change in velocity in 1 second is called acceleration. So
change in velocity upon time is called acceleration. Next, sixth, retardation. Retardation or deacceleration, negative acceleration or rate of decreasement of velocity with time. Negative acceleration or rate of decrease of velocity with time is called retardation. Yes. So look, distance. So the symbol of distance is generally S. Symbol of displacement can be also taken generally S. And velocity is shown by V. So its symbolic formula of speed is V equal to S upon T. And velocity speed can be symbolic, represent V equal to S upon T. And velocity can be also shown as V equal to S upon T in symbolic form, and acceleration in symbolic form can be shown as XA. Acceleration is shown by A. So acceleration A equal to delta V upon T, and negative acceleration is called retardation. Yes. तो देखो बच्चों, distance, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके द्वारा जितना एक्चुअल लेंथ पाथ की कवर की गई है उसे कहते हैं डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ का होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. स्पीड, बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस कहलाती है स्पीड. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इनकी डायरेक्शन नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है. इसकी ऐसा यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, और यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं. बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. एस और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट का जनरल सिंबल एस है, डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से दिखाते हैं. तो वेलोसिटी स्पीड को v से दिखाएंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला लिखा जा सकता है v इक्वल टू एस अपॉन टी. वेलोसिटी को भी सिंबॉलिक लिखा जा सकता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, और एक्सेलरेशन को भी लिखा जा सकता है a इक्वल टू, एक्सेलरेशन को a से शो करते हैं तो a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. और रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रेट ऑफ डिक्रीजमेंट इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन और रेट ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड इज. नाउ नेक्स्ट टर्म, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. Average velocity, average velocity, next term average velocity. Average velocity is the ratio of total displacement to total time covered by body. Average speed and average velocity both have unit meter per second. Now, when body with moving with uniform acceleration means constant acceleration, then the average velocity of body can be given by average velocity equal to u plus v upon 2, u initial velocity and v final velocity. Now instantaneous velocity, when a body moving with variable velocity, time to time velocity change, then at a particular time, at an instant time, velocity is given by is called instantaneous velocity. Again listen, when body moving with uniform, non-uniform velocity means variable velocity, then velocity of the body at instant time is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity v equal to ds upon dt means rate of change of displacement with time.
d over dt, this is the differential function, ds upon dt, differentiation of s with respect to t, where s distance, t time, ds upon dt. Instantaneous speed, the speed of when body moving with variable speed, then the speed at an instant time is called instantaneous speed, v equal to ds upon dt, where ds upon dt is represented in the form of differentiation, rate of change of distance with respect to time. S for distance, t for time. In place of ds or dt, we can write delta s upon delta t. Now, instantaneous acceleration, when body moving with variable acceleration, then the acceleration of a body at an instant time is called instantaneous acceleration, a equal to dv upon dt. This is represented in differential form, differentiation form. dv upon dt shows that rate of change of velocity with respect to time, differentiation of v with respect to t, where v velocity and t time. Now, point object, when the object covered large distance as compared to its size, then the size of object can be neglected. In this condition, object is said to be point object. Again listen, when object covered large distance as compared to its size, then the size of body can be neglected. In this condition, object said to be point object. For example of train, when train pass through one station, one city to another city, how much distance covered by train? We only count the distance between the two cities. We neglect the size of train. We neglect the length of train. In this condition, train covered the large distance. That's why we neglect the size of train. In this condition, train said to be point object. Now, uniform motion. Uniform motion is the motion in which body moving with constant velocity or a uniform velocity, or we can say the motion in which body covered equal displacement in equal interval of time. Is now uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion is that motion in which body moving with constant acceleration. Constant acceleration means when body covered equal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration is constant and motion is said to be uniformly accelerated motion. Now, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टर्म है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है? रेशियो है टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम. इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट टाइम एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम. इसकी भी ऐसा यूनिट एवरेज वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है. यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जा सकती है, u प्लस v अपॉन 2. यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. अब जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है. जब समय के साथ उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखी गई है. डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएशन बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. इसलिए हम डिफरेंशिएशन से शो कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को. मतलब dt टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करिए बॉडी? ds. तो ds अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किसी इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी. और वैसे हमने डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है इसे ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसी बॉडी जब वेरिएबल स्पीड से मूव करे, मतलब टाइम के साथ उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे जो भी स्पीड होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड ds अपॉन dt, जहाँ s डिस्टेंस, ds डिस्टेंस और dt टाइम. ये डिफरेंशियल फॉर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसे ही जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब समय के साथ उसका एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा तो वो रिप्रेजेंट होता है, किसी इंस्टेंट टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, d ओवर dt. d आप ये डिफरेंशियल फंक्शन ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
हमें यदि b का फंक्शन पता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t इज नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी साइज के कंपेयर में बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रेन जब एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है तो ट्रेन के द्वारा चली गई डिस्टेंस उन दोनों सिटी के द्वारा के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम मानते हैं, हम ट्रेन की साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस लार्ज है ट्रेन की साइज के कंपेयर में, इसलिए ट्रेन की साइज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उस सब कंडीशन में ट्रेन क्या कहलाएगी आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसी बस जब एक सिटी से दूसरे सिटी जा रही है तो बस हम सिटी के बीच की डिस्टेंस को हम काउंट करते हैं, बस की जो टोटल साइज है, क्योंकि बस अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग भी डिस्टेंस कवर करेगा, हम बस की लेंथ को साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस समय बस किसके कंसिडरेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो उस समय पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है जब ऑब्जेक्ट अपनी साइज के कंपेयर में बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करे। यानी साइज है 2 मीटर 10 मीटर और बॉडी ने कवर कर ली डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, 10 मीटर के 1000 मीटर के कंपेयर में 10 मीटर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसी मोशन जिसमें कि बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगी बॉडी? जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर करेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद बात आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यस, और एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा? जब बॉडी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगी। जब बॉडी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो कहलाती है यूनिफॉर्म। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम में जब बॉडी कवर करती है तो कहलाती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यस नाउ लुक difference between distance and displacement. First, distance is a scalar quantity. Second, displacement is a vector quantity. Second, third, distance cannot be negative, but displacement can be negative according to their direction. And next difference, distance for a moving body, distance cannot be 0, but displacement can be 0. And distance, next difference, distance is the actual length of path covered by body. What is the meaning of actual length of path? Look, body start to move from A. First of all, body move from A to B and cover 10 meter distance, and then body return back to the point C, cover 3 meter distance, and at C point it will be coming rest. So A is the initial position and C is the final position. A is the initial position and C is the final position. So how much actual length of path covered by body? 10 meter plus 3 meter. So distance covered by body is distance covered by 10 minus 3, 10 plus 3, 10 plus 3, 13 meter. Actual length of path. First of all it covered 10 meter, then length of path 3 meter. But displacement is the shortest distance between initial and final position. Displacement is the shortest distance. So look, shortest length of path. So that is the A point, that is the C point, A initial position and final position. What is the shortest distance length of path between initial and final position? 10 meter minus 3 meter. 10 meter minus 3 meter. So what is the shortest length of path? 7 meter. So how much displacement covered? 10 minus 3, 7 meter. And if body return back to the A point from A to B and then come to B to A, then what is the distance? 10 meter plus 10 meter, 20 meter. And here body return back to the A point. So initial position is A and final position is also A. So initial and final position is coincide. That's why shortest length of path become 0 and displacement become 0. तो बच्चों देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस 0 हो नहीं सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जाए। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस होती है मूविंग बॉडी की एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। या हम कह सकते हैं डिस्टेंस
with direction is called displacement. We can say distance with direction is called displacement. Yes. अब देखिए बच्चों देखिए इधर बॉडी ए से बी गई. Look, students, body move from A to B. बॉडी पहले A से B गई और फिर B से C गई. तो A से B और B से C आई. तो कितने लेंथ कवर करी उसने? इनिशियल C पे रेस्ट में आ गई. तो A इनिशियल पोजीशन और B फाइनल पोजीशन है. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? देखिए पहले A से B 10 मीटर कवर किया, फिर B से C 3 मीटर कवर किया. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर प्लस 3 मीटर. डिस्टेंस कितनी कवर करी? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी. तो पहले A से B गई 10 मीटर, फिर B से C आई 10 मीटर. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 प्लस 3 13 मीटर. जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ. तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? A और C. इनिशियल और फाइनल पोजीशन A और C के बीच की AC कितना हुआ? 10 माइनस 3 7 मीटर. तो डिस्टेंस जब बॉडी A से B और B से C आई तो डिस्टेंस तो कवर कर हो रही है 13 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है? 7 मीटर. और यदि बॉडी A से B और B से A पे आ जाती तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्साइड हो गए. डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन कॉन्साइड हो गए. इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब कॉन्साइड हो गई बॉडी तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गई? 0. शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ 0 हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. एक बार और सुनिए, बॉडी यदि A से B और B से A पे आ जाती, यानी कि जर्नी A से B पे और B से जब A पे आ गई तो डिस्टेंस कितनी कवर करी? 10 मीटर. और फिर A से B गई 10 मीटर, फिर B से A आई 10 मीटर, 10 प्लस 10 20 मीटर. तो डिस्टेंस तो चली 20 मीटर, लेकिन बॉडी इनिशियल पोजीशन भी A है और फाइनल पोजीशन भी A है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कॉन्साइड हो गए हैं, इसलिए शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गया? 0. इनिशियल और फाइनल के बीच का, क्योंकि दोनों कॉन्साइड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. So in this session, students, we have discussed some basic terms of the motion in straight line. Thank you.